Hello, good morning, students. Today in chapter soil, we will discuss about keywords and question answers of this chapter. Okay, so here is all keywords, that is clay, humus, loamy, percolations, moisture, sandy, and water retention. Okay, so let's start the each keywords one by one. The first keyword is clay. What is clay? Clay is a type of soil. Okay, clay is a type of soils having a smallest particle which is tightly packed. Okay. Clay is a type of soils having smallest particles which is tightly packed. Okay, it can hold water. Next is humus. The dead and decaying matter present in the soil which makes soil fertile is known as humus. Okay, it is also known as organic matter. Next is loamy. What is loamy? Loamy is also a type of soil, okay, which is the mixture of various soils. That is sandy soils, clay soils, silt, and little of gravel. Okay, it have capacity to hold more and more waters. Okay, and it can absorb water. It have fine particles of it have fine particles which can passes the air to the roots of the plant. Next is percolation. Percolation is the process of passing water through the soil. It is a slow process. Next is moisture. We have already know that what is moisture. Moisture is the amount of water present in air. Okay, but here is moisture of soil. Okay, the present of water, the presence of water is present, the amount of water present in soil is known as moisture. Okay, and next is sandy. Sandy is a type of soil which have large particles. Okay, it can absorb water quickly, but it can't hold water. Okay, it is generally found in desert region. Next is water retention. Retention is the process to hold water in the soil. Okay, so I hope all the keywords is clear. Let's discuss about question answers of this chapter. The first question is, in addition to the rock particles that is so the soil contain. Okay, question answers. First two question is MCQ. Okay, so the first question is, in addition to the rock particles the soil contain. रॉक पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ओके, आफ्टर दैट रॉक पार्टिकल्स में उस ब्रेक डाउन रॉक पार्टिकल्स में यानी कि सिंपलर मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ मिक्स होती है जो सॉइल बनाती है. ओके, तो योर ऑप्शन इज एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर नहीं होगा, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर एंड वाटर. या थर्ड इज करेक्ट. ओके, तो वन का सी हो जाएगा. Next question. The water holding capacity is highest in sandy soil. Water holding, okay, not absorbing. Sandy soils can absorb water but can't hold. Okay, clay soils have very small particles or tightly packed particles, so it can hold water, but the process of holding waters in clay soil is very slow. Okay, due to the smallest particles.
Okay. Next is loamy soil. Yeah, loamy soils have fine particles. It can hold more and more water. Okay, then C is correct answer. Next questions, match the following. A home for living organisms. Okay, a home for living organisms. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल. सभी काइंड्स ऑफ सॉइल्स में छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. अर्थवॉर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, स्नैक्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 का 2 हो जाएगा. upper layer of the soil dark in color. Okay, dark in color, that is C. 2 का C. Next is sandy soils large particles. 3 का A. मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल्स लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस फर्टाइल. ओके, तो 4 का कितना नंबर हो जाएगा? E. एंड 5 का D. 5 का क्या है? D. clay soils have small particles and packed tight. Okay, so I hope question number 1 to 3 clear है. Next is explain how soil is formed. Okay, so it is very simple questions. Okay, how soil is formed? Soil is formed by the rock particles. Okay, soil is formed by the breaking down of rock particles, and this breaking down of rock particles is the process of breaking down of rock particles is known as weathering. Okay, तो सॉइल कैसे बनेगा? सो इसमें आप लिखोगे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स ड्यू टू द नेचुरल फेनोमिना लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, एयर, वाटर, एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज क्ले सॉइल्स यूजफुल फॉर क्रॉप्स. ओके, so clay soils can hold water. Okay, clay soils can hold water, so the crops which requires more water to grow, that crops can grow in clay soil. Okay, तो clay soils क्या होता है? clay soils में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जिस क्रॉप्स को वाटर ज़्यादा चाहिए वो क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं clay soils में, लाइक राइस एंड मिर्च. ओके, तो क्या लिखोगे इसमें? हाउ इज क्ले सॉइल्स इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स. एज वी नो क्ले सॉइल्स कैन होल्ड मोर एंड मोर वाटर. ओके, and the crops which requires more water to grow, that crops can grow in clay soils. Next is list the difference between clay soils and sandy soil. Okay, it's very easy questions. Okay, clay soils and sandy soil, one side आप clay soil लिख दोगे, one side आप sandy soil लिख दोगे. clay soil क्या होता है? clay soil is a type of soil which have smallest particles of molecules. ठीक है, and sandy soils is a type of soils which has large particles. Okay, clay soil is tightly packed, sandy soil is loosely packed. Okay, clay soils can hold water while sandy soils can't hold water. Okay, clay soils absorb clay soils the water absorbing capacity in clay soil is very slow, while water absorbing capacity in sandy soil is very fast. Okay,
So बहुत सारे differences है, you can write yourself also. Okay. Next is sketch the cross sections of soil and levels of the various layer. ठीक है, तो cross sections मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 7. ओके, यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस में मैंने आपको रॉक पार्टिकल्स यानी कि बेड रॉक है, उसके ऊपर आपको क्या बताया था मैंने, सी होरिजन, ठीक है, उसके ऊपर बी होरिजन, उसके ऊपर ए होरिजन, ठीक है, उसके ऊपर क्या बताया था, ह्यूमस. ओके, तो ये आप फिगर अपने बुक से देखकर आप इसको स्केच करोगे, यानी कि सॉइल प्रोफाइल का पिक्चर्स आपको ड्रॉ करना है इसमें. ओके, नेक्स्ट है रजिया काउंटेड एंड एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड्स रिलेटेड टू द रेट ऑफ percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 milli of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो rate of percolation मैंने आपको बताया था. rate of percolation क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय टाइम टेकन. ओके, यही है ना रेट ऑफ पर्कुलेशन. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 200 मिली. ओके, 200 ml. टाइम टेकन कितना है, 40 मिनट. ओके, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, 5 मिली पर मिनट. ये मैंने बताया भी था, ठीक है, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था आपको. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड. ओके, सॉइल इरोजन क्या था, सॉइल पॉल्यूशन क्या था, कंटामिनेशन ऑफ वेस्ट इन द सॉइल. ओके, एंड सॉइल इरोजन क्या था, रिमूवल ऑफ व्हाट, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड वेस्टेज प्रोडक्ट्स इन द सॉइल. ओके, और सॉइल इरोजन में क्या कर सकते हैं, डू नॉट कट द प्लांट्स. पहला हो गया. नेक्स्ट क्या है, सॉइल पॉल्यूशन में आप नेक्स्ट लिखोगे, we should not add more and more fertilizers in the soil. Okay, next, और soil erosion में आप लोग लिखोगे, we should grow more and more plants. We should reforestation the plants. Okay, यानी कि जो plants को हम लोग deforest किए उसको हम लोग reforest करें. Okay, so this would be, by these two methods we can prevent from soil pollution and soil erosion. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पजल है. ओके, तो पजल में आपको अक्रॉस में कुछ क्वेश्चंस हैं और डाउन में कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बताता हूँ. ठीक है, अक्रॉस एंड डाउन. ओके, अक्रॉस के आंसर यहाँ लिखूंगा, डाउन के यहाँ लिखूंगा. ओके, तो अक्रॉस में पहले देखते हैं, प्लांटेशंस प्रिवेंट इट. ओके, प्लांटेशन कहने का मतलब क्या है, पेड़ लगाने से क्या बचता है, तो पेड़ लगाने से सॉइल हमारा इरोजन होने से बचेगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इरोजन. यानी कि अक्रॉस में 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर का हो जाएगा इरोजन, EROSION. इरोजन. नेक्स्ट है 3 नंबर. 3 नंबर क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर, यूज शुड बी बैन्ड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन. तो सॉइल पॉल्यूशन को होने से ये चीज अवॉइड होना चाहिए, बैन होना चाहिए. तो कौन सा चीज है, ये पॉलीथीन है. पॉलीथीन बैन होना चाहिए. तो
5 नंबर, अक्रॉस में 5 नंबर देखिए, POLYTHENE, पॉलीथीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन अक्रॉस 6 नंबर, टाइप्स ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री। तो पोट्री कौन सा सॉइल बनाता है? तो क्ले सॉइल बनाता है। ठीक है, कितना नंबर है? 6 नंबर, तो 6 का क्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिविंग ऑर्गेनिजम इन द सॉइल। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? तो आपके जो पजल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे है सॉइल्स में, लेकिन आपका जो पजल है उसमें अर्थ वॉर्म जो है वो सेट करता है, तो अर्थ वॉर्म हो जाएगा आंसर इसका। EARTHWORM, अर्थवॉर्म। ओके, अब चलते हैं डाउन में। डाउन में पहला है, इन डिजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू विंड। ओके, तो पहला हो जाएगा डाउन में विंड। चलिए डाउन में दूसरा देखते हैं, 3 नंबर, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक विट। ओके, क्ले और लोम में हम लोग विट जो है क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, विट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द टाइप ऑफ सॉइल्स कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो होल्ड करना यानी कि वाटर को होल्ड करके रखना, तो ये क्या होता है? ये सैंडी सॉइल्स, ये सैंडी सॉइल्स में बहुत ही कम पानी होल्ड हो सकता है, तो सैंडी हो जाएगा यहाँ पे। कितने नंबर है ये? 4 नंबर। सैंडी सॉइल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कलेक्टिव नेम्स फॉर लेयर ऑफ सॉइल। ओके, लेयर ऑफ सॉइल का कलेक्टिव नेम्स क्या है? सॉइल प्रोफाइल कहेंगे इसको। ठीक है, तो प्रोफाइल हो जाएगा 5 नंबर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर एंड कीवर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, एंड इस क्लास के बाद आपका फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके, अगर फर्स्ट टर्मिनल कोई सिलेबस में कोई भी डाउट है अभी भी, तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ प्रिपेयर फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। ओके, थैंक यू।